Hello everybody, good morning. This is C. Ankit Kumar Jain, your IDT Mind Mapper. IDT Mind Mapper बोलो, IDT Mentor बोलो, IDT Guide बोलो, IDT Faculty बोलो, IDT Learner बोलो. Even I am learning IDT as it is growing phase by phase, phase by phase. Every day there is so much changes, correct? So today what we will try to understand, this being an introductory session, we will try to understand that how are we going to study in this particular series एंड जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, करेक्ट है. सो दिस बेसिकली दिस सीरीज इज फॉर CA, CMA and CS professionals, correct? CA, CMA finals and CMA professionals, everything will be covered because law is same, so there is nothing कि इसमें अलग होगा, उसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, करेक्ट है. So CA, CMA final and CS professionals के लिए रिकॉर्डिंग है. एंड देन what we'll be covering here and how we'll be covering here is very simple. So here my methodology is teaching is mind map. Now when I talk about this mind map का मतलब क्या होता है? I want to create an image or a process flow or a map in your mind so that you can remember each and everything logically and you become confident कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये, what is the logic behind it, correct? So the whole textbook which is there with you guys, that is in the mind map format. So what I've done is I have broken the law into mind map format so it becomes easy for you. Then there's also one bazooka book which is a summary book which I'll be discussing in detail. Summary book which is very much useful for your last day revision. Maximum of the chapters have been covered into that bazooka book. Still, if few small chapters are pending, we'll be covering as and when we'll be going through it, correct? So this is what it is. So we will understand that how we are going to study and कैसे हम इसमें एक दूसरे को support करने वाले हैं, correct? So let us go and first see कि what is the coverage here. So as we all know that the syllabus is very simple. GST है, customs है and FTP है, correct? So GST is for 75 marks, customs is for 20 marks and FTP is for 5 marks. So the whole objective here is that out of this 115 marks, 100 marks, जहाँ पे यू रिसीव क्वेश्चन पेपर ऑफ 116 मार्क्स, यहाँ पे यू हैव टू स्कोर मिनिमम 75 प्लस एंड विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल इफ यू फॉलो व्हाट आई टेल यू टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. कंसिस्टेंसी इज द की, करेक्ट? अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आप स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, करेक्ट? एक तो चीज ये हो गया. दूसरा, वेन एवर यू आर स्टडिंग विथ मी, आपको एक चीज ध्यान में रखना है दैट यू आर नॉट अ CA फाइनल स्टूडेंट, बट you are not a CA final student, but what? You are already a qualified chartered accountant, correct? You are already a qualified chartered accountant. आपको वो mindset से बैठना है, समझना है, चीज़ों को analyze करना है. Why? Because the moment you finish this last paper of your group 2, you are a chartered accountant. People start feeling that boss इसको सब आता है and he is the god of taxation, he is the god of finance, he is the god of accounts. So we have to build that culture in ourselves so that we are ready for going into the market, correct? So आपको यही assume करना है कि आप already qualified chartered accountant हो. Understand this, the impact of this will be very 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 severe in your life. Secondly, जो भी हम चीज़ समझ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि आपके पास से कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आया है and he wants to evaluate all this stuffs with you so that he is a big ticket client for you. जैसे आप ये सोचोगे कि यार इसके he is a big ticket client for me, इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसका वो भी ऑप्शन हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, then your mind start functioning accordingly with logics, करेक्ट? सो आप ये चीज समझ के बैठो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास कोई क्लाइंट आया है एंड इज आस्किंग यू टू मेनी क्वेश्चंस which you have to solve, because if you solve those questions you're going to mint money out of it, करेक्ट है? तो ये बेसिक चीजें आपको समझ के रखनी है कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी इज द की, करेक्ट? नाउ what will be the deliverables from my side? मैं आपको क्या क्या चीज में सपोर्ट करने वाला हूँ. One is the bazooka mind map summary book, which basically is a capsule book or in the mind map format of the detailed book, जहाँ पे important चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर की है. प्लस आई हैव ऑल्सो कवर्ड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दैट बुक इटसेल्फ, ताकि आप लास्ट डे में जब रिवाइज करो that would cover 75% of your portion and you just have to read balance few chapters which is there into your main book. वो भी छोटे छोटे chapters हैं, correct? Then there's one textbook which is already given. That textbook is also into mind map format, correct है? आप देख सकते हो.
राइट. सो व्हाट आई डन इज आई ब्रोकन द लॉ इनटू पीसेस, बिट्स एंड पीसेस, तो आपको रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. देन यू हैव क्वेश्चन आंसर बुक एंड एमसीक्यू बुक, and then we'll be doing certain revision videos and doubt solving through Telegram channel and WhatsApp. Clear? So this is the basic deliverables from our side. that एक तो बजूका माइंड मैप समरी बुक दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक है जो भी माइंड मैप फॉर्मेट में है, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू बुक है, वो भी आपका जो है डिटेल हमने सारा कवर किया इसके अंदर. मॉड्यूल के क्वेश्चंस, सीएमए मॉड्यूल के क्वेश्चन, सीएस मॉड्यूल के क्वेश्चन, प्लस एग्जाम्स क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल, सारे चीज़ों को टॉपिक वाइज हमने कवर किया इसके अंदर. करेक्ट है. Now this video is suitable for whom? People who are appearing for examination in May and June can view these videos, and then this is the notes are amended up to 30th of October 2020, and for November and December 21 we'll be doing a lot of we'll be sharing with you with the notes, plus we'll be giving you the amended video also. करेक्ट है. तो ये हो गया बेसिक फ्रेमवर्क जहां पे हम ये समझ रहे हैं कि हमने क्या क्या कवरेज किया है इसके अंदर. करेक्ट. नाउ लेट अस गो एंड सी कि ये जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जीएसटी, द थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज जीएसटी प्लस योर कस्टम्स. करेक्ट है. ये क्या है? व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट टैक्स. करेक्ट. तो इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या हमको ये समझना है. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इनटू द इंटर लेवल, तो हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बेसिक आपको आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इट इज नथिंग बट हमको ये समझना है कि हमको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एज अ पार्टनर. करेक्ट है. वी आर अ पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज योर पार्टनर. आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसकी रिपोर्टिंग आपको गवर्नमेंट को देनी है, एंड बेस्ड ऑन दोज रिपोर्टिंग द गवर्नमेंट विल बी चार्जिंग सर्टेन प्रॉफिट और सर्टेन परसेंटेज, दैट इज हिज शेयर, देयर शेयर इन योर बिजनेस. करेक्ट. सो गवर्नमेंट इज बेसिकली योर पार्टनर इन ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन. करेक्ट. सो आप जो भी ट्रांजैक्शन करो, जितना परचेज करो, जितना सेल्स करो, जितना परचेज करो, जितना सेल करो, कोई परचेज सेल्स रिटर्न है, कोई परचेज रिटर्न है, सारा जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग, उसका जो टैक्सेशन है, उसका जो उनका शेयर है, दैट द गवर्नमेंट विल टेक फ्रॉम यू. करेक्ट. सो बेसिकली यही होता है इसके अंदर. सो देयर आर 3 पार्टीज इनटू दिस. बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब मैं बात करता हूं, एक पार्टी हो गया मेरा कंज्यूमर विच इज एट द एंड. अल्टीमेटली आप जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करने वाले हैं. राइट. उसके बीच में होता है ऑल द ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, ये सारे लोग होते हैं. और यहाँ पे होता है हमारा गॉड फादर जिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट. करेक्ट है. सो गवर्नमेंट की आंखें बड़ी तेज है. ही हैज ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हाट यू आर मेकिंग, एंड बिटवीन दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, कुछ भी होने दो, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग होते हैं. एंड फॉर ईच ट्रांजैक्शंस द गवर्नमेंट बिकम्स पार्टनर, और कुछ पोर्शन जो होगा वो गवर्नमेंट को हमको देना पड़ता है. दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड व्हेन द रिटेलर सेल्स इट टू द एंड कंज्यूमर, यहाँ पे ही इज द पर्सन ऑन होम द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज इम्पोज्ड. करेक्ट है. तो जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, इट इज अ बाईपास ट्रांजैक्शन, एक से दूसरे के हाथ में, दूसरे तीसरे के हाथ में, तीसरे चौथे के हाथ में, एंड द मोमेंट इट रिचेज द एंड कंज्यूमर, यहाँ पे फाइनली गवर्नमेंट को पूरा का पूरा टैक्स मिलता है. विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन डिटेल एज वी फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स इन डिटेल. करेक्ट. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ तक आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट जो है आपका पार्टनर है. ही इज अ पार्टनर, एंड वॉट एवर ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग इन द बिजनेस, द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू इट, एंड द गवर्नमेंट विल टेक इट शेयर फ्रॉम योर पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्लियर एवरीबडी? राइट. सो नाउ लेट अस टुडे सी कि हम इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन, मैंने एक शीट बनाया विच इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजैक्शन. राइट. सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन? जैसे हमने पहले पढ़ा अभी दैट द गवर्नमेंट इज योर पार्टनर इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस. करेक्ट. नाउ अभी जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, देन व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द फ्लो? सो व्हाट आई हैव क्रिएटेड इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन कहां शुरू हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है.
सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्यों आ रहा है. करेक्ट. विल बी गोइंग इन डिटेल कि जीएसटी क्या है, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, टैक्सेस क्या है. एज ऑफ नाउ दिस जस्ट बीइंग एन इंट्रोडक्टरी सेशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इवैल्यूएट द होल गैमेट ऑफ जीएसटी की जीएसटी पूरा का पूरा क्या कवरेज कर रहा है. करेक्ट है. सो लेट अस सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजैक्शन. नाउ फर्स्ट थिंग, पहले तो हमको ये समझना है कि गुड्स क्या है. करेक्ट. सेकेंड वील हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सर्विसेज क्या है. अब खाली गुड्स या खाली सर्विसेज, अगर ये गुड्स है मेरा, करेक्ट, तो क्या उसमें गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं बट बेच नहीं रहा हूं, सपोज. सो it's my service to record lecture or deliver lecture, but I'm not selling that lectures, right? So can the government charge some amount from me on that? Correct. That means ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके ऊपर क्या एक्टिविटी होना चाहिए so that the government becomes my partner in the particular transaction. Correct है. So first and foremost let us understand the concept of goods. Goods क्या है? Goods is defined in section 2 subsection 52 क्लॉज 52. करेक्ट है. सो जब भी हम गुड्स की बात करेंगे आपको ये समझना है कि 252 के अंदर क्या चीजें मेंशन की गई है, विच विल बी स्टडिंग इन डिटेल. राइट. सो गुड्स हैव बीन डिफाइंड एज ऑफ नाउ. अभी के लिए समझते हैं कि कोई भी टैंजिबल चीज है, मूवेबल चीज है, उसको हम गुड्स बोलते हैं. करेक्ट. सो एनीथिंग विच हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 52 इज कॉल्ड एज गुड्स. टेक्निकली अभी के लिए हमको ये समझना है कि कोई भी चीज टैंजिबल हो, कोई भी चीज मूवेबल हो, उसको हम गुड्स बोलते हैं. करेक्ट. सिमिलरली जब मैं सर्विसेज की बात करता हूं, सर्विसेज इज बेसिकली डिफाइंड, वन सेकेंड, सर्विसेज इज बेसिकली डिफाइंड इन सेक्शन 2102. क्लियर. सो यहां पे यही है कि जो मैं सर्विस दे रहा हूं दैट इज डिवाइड इन सेक्शन 2102. करेक्ट. नाउ सिमिलरली अभी ये गुड्स एंड सर्विसेज तो मेरे को मालूम पड़ गया. नाउ व्हाट शुड हैपन ऑन दिस गुड्स एंड सर्विसेज विच विल create the possibility of the government to become a partner in my transaction and so that they can start charging their revenues. Correct. तो अभी ये समझना है हमको कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा. आपको जब भी जीएसटी पढ़ना है हमको एक ही चीज समझना है कि सप्लाई होनी चाहिए. राइट है. गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए या फिर सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए. जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट मेरा पार्टनर नहीं बनेगा. राइट. सो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांजैक्शन के अंदर गवर्नमेंट जो पार्टनर बनेगा वो ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए. करेक्ट है. सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, या फिर ये सप्लाई हो गया नहीं हुआ है, तब तक सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर सेट नहीं होता है मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन. टिल दैट टाइम द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम द पार्टनर. करेक्ट. एंड द मोमेंट इट फॉल्स और ये सेटअप होता है सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या बनती है? मेरा पार्टनर बन जाती है. और जो भी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उसके अंदर गवर्नमेंट विल बेसिकली बी अ पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. करेक्ट. नाउ सो व्हाट यू मीन दिस पर दिस इज कि जब मैं सप्लाई की बात करता हूं, इट कैन बी इंटर स्टेट सप्लाई और इट कैन बी इंट्रा स्टेट सप्लाई. करेक्ट. सो इट कैन बी इंटर स्टेट सप्लाई और इट कैन बी इंट्रा स्टेट सप्लाई. सो दैट मीन्स मैं यहां बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन मुंबई, राइट. आई हैव माई ऑफिस इन बॉम्बे वेयर आई एम प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स, say pens. Right. Now these pens which I manufacture, I can supply it to somebody who is staying in Pune, that is again in Maharashtra, or to somebody who is staying in say Delhi, that is in different state Delhi. Correct है. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि I am supplying the goods either within the same state or from one state to another. Correct है. That means जो सप्लाई है, जो गुड्स है, मूव हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राइट. विल बी स्टडिंग इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. एज ऑफ नाउ अभी आपको ये समझना है कि सपोज कि ये पेन मैंने मैन्युफैक्चर किया है, ये पेन मैंने जाके दे दिया है इंटर स्टेट सप्लाई. करेक्ट है. दैट मीन्स मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया है, या फिर मैंने ये पेन को सेल किया है मुंबई से पुणे में, दैट इज विद इन द सेम स्टेट. करेक्ट. सो दैट मीन्स ये गुड्स या सर्विसेज जो हो रहे हैं उसका कुछ सप्लाई हो रहा है. करेक्ट. So that is what the activity should happen on the goods and services. Unless and until this activity happens, GST will not be activated. GST implement नहीं होगा. करेक्ट है. GST का एक्टिविटी नहीं होगा, GST पे GST लागू नहीं होगा. करेक्ट है. समझ में आ रहा है आप लोग को. तो पहला चीज तो हमको ये समझना है पूरा फ्लो के अंदर कि गुड्स क्या चीज है, सर्विसेज क्या चीज है,
once this concept is clear, then we will understand in detail कि ये goods and services खाली पड़े रहने से क्या गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा? नहीं. The government will receive the taxes only if there's certain activity on goods and services. Now this activity कैसे relate करेंगे हम? Supply के through. That means ये goods and services का supply होना चाहिए. Supply can be interstate or intrastate. That means ये अगर होगा then only the goods and services का concept आपको GST लागू होएगा. Clear? Now लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये तो हमने समझ लिया कि गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और एक्टिविटी हो रही है. दैट मीन्स सप्लाई हो रहा है. आइदर इट कैन हैपन इंटरस्टेट और इट कैन हैपन इंट्रास्टेट. करेक्ट. नाउ अब जब ये सप्लाई हो रहा है तो मेरे को पता है कि यहां से ट्रिगर हो गया है जीएसटी. राइट है. दैट मीन्स यहां पे लेवी ऑफ जीएसटी विल स्टार्ट. करेक्ट. दैट मीन्स लेवी का मतलब क्या होता है? इम्पोज, किसी के सर पे भार डालना. राइट है. अगर मैं किसी कूली के सर पे भार डाल दूंगा वजन का, दैट मीन्स मैं उस पर वजन इम्पोज कर रहा हूं. करेक्ट. सिमिलरली इफ अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसमें सप्लाई हुआ है और उसको गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है उसके ऊपर जीएसटी, दैट मीन्स जैसे ही सप्लाई होगा, जैसे ही हम सप्लाई की डेफिनेशन को हिट करेंगे, हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है क्या? जीएसटी. राइट. सो व्हाट इज इम्पोज्ड इज जीएसटी. यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है लेवी ऑफ जीएसटी का. राइट. सो दिस लेवी ऑफ जीएसटी इज ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज. राइट. सो बेसिकली जब भी मैं लेवी की बात करता हूं कि इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवी इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. करेक्ट है. तो मेरे को ये जब क्वेश्चन आएगा कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा सर, सो वी हैव टू फर्स्ट सी वेदर ये गुड्स एंड सर्विसेज के डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है, एंड देन वी विल सी कि सप्लाई के अंदर भी वो फिट होता है कि नहीं होता. करेक्ट. सो लेवी ऑफ जीएसटी बेसिकली, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी is on the concept of goods and services. जब तक हम goods and services को नहीं समझेंगे, हम लेवी को नहीं समझ सकते हैं. करेक्ट है. So this is how the whole flow of the chapters will be going on. Now as we have seen कि ये लेवी किस पे होगा? सप्लाई पे होगा. सप्लाई कैन बी व्हाट? इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट. तो अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा, then the GST that will be levied is called as IGST, Integrated Goods and Services. मिक्स किया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. करेक्ट. दैट इज अगर मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सप्लाई हो रहा है, और अगर सप्लाई कहां हो रहा है? इंटर स्टेट में हो रहा है, देन आईजीएसटी वुड बी लेविड. और अगर ये इंट्रा स्टेट में सप्लाई लेवी होता है, देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वुड बी लेविड. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को पूरा फ्लो? तो हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्ड प्रोविजंस. वी विल बी गोइंग इन डिटेल प्रोविजन वेरी सून, बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द फ्लो. किस फ्लो में जीएसटी बना है और हमको किस फ्लो में समझना है, सो दैट इट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू. आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि यार ये लॉ, ये प्रोविजन क्यों बना है, ये तो होना ही नहीं चाहिए. वी विल बी रीडिंग द होल लॉ विथ लॉजिक्स, विथ अंडरस्टैंडिंग. राइट. तो ये पूरा आपका फ्लो हो गया. राइट. नाउ इसके बाद क्या होगा कि अब मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है. दैट मीन्स ये एक स्टेट से अनदर है या विद इन द सेम स्टेट है. इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है? So the moment we understand this place of supply का concept, we will be able to identify whether this particular supply of goods and services is interstate or intrastate. अगर interstate होगा तो क्या लेवी होगा? IGST. और अगर intrastate होगा तो क्या लेवी होगा? CGST. करेक्ट है? तो ये पूरा फ्लो आपको अभी तक समझ में आ गया. करेक्ट. सो पहला हमने देखा गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज पे कुछ एक्टिविटी होना चाहिए. सम एक्टिविटी शुड हैपन. दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. नाउ दिस सप्लाई, जैसे ही सप्लाई होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जीएसटी इज लेविड ऑन व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ दीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन हैपन विद इन वन स्टेट और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है इंटरस्टेट का और इंट्रास्टेट का. क्लियर है आप लोग को? नाउ अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लेवी होगा? आईजीएसटी. अगर इंट्रास्टेट, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो क्या लेवी होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी. नाउ हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस पर्टिकुलर
सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, उसके लिए देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द जीएसटी लॉ विच टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, करेक्ट। देन यू हैव कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब मेरे को ये मालूम पड़ गया कि ये जीएसटी इम्पोज तो हो गया है, करेक्ट, दिस जीएसटी हैज बीन लेविड, ये सप्लाई भी हो गया है। अब ये सप्लाई हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट आ गई पिक्चर में, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है। नाउ गवर्नमेंट क्या बोलती है, बॉस नाउ दिस जीएसटी इज लेविड, अब किसका जिम्मेदारी है कलेक्ट करके पेमेंट करने का, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन एंड पेमेंट, राइट। सो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, राइट, so who is going to do the collection work, who is going to do the payment to the department is what is the next concept of collection and payment of GST, right. So this is basically collection and payment of GST, जहां पे हमको ये पढ़ना है कि ये कौन करेगा, who will do it। सो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट आता है टैक्सेबल पर्सन का, करेक्ट है। सो बेसिकली ओनली एंड ओनली पर्सन हु आर अ टैक्सेबल पर्सन कैन ओनली कलेक्ट एंड मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी, राइट। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, आप अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो फिर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते एंड पेमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। नाउ लेट अस सी दिस कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी के बारे में हमको क्या समझ, राइट। सो दिस कलेक्शन, जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, राइट है, इट विल बी डन बाय टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा, वो भी टैक्सेबल पर्सन ही करेगा डिपार्टमेंट को। कलेक्शन किससे करेगा, बेसिकली हर एक जो पूरा चेन है ट्रांजैक्शन का, करेक्ट, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे है होलसेलर, यहाँ पे है रिटेलर और यहाँ पे है कंज्यूमर, करेक्ट। सो अल्टीमेटली जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो उसका एंड यूजर जो है, कंज्यूमर जो है, उसके ऊपर पूरा बर्डन जाता है, करेक्ट है। तो इससे जो टैक्स कलेक्ट करेगा रिटेलर करेगा। नाउ दिस रिटेलर हैज टू बी टैक्सेबल पर्सन। इससे जो टैक्स कलेक्ट करेगा होलसेलर करेगा, ही हैज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। दिस मैन्युफैक्चरर कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द होलसेलर। जितने भी टैक्सेबल पर्सन हैं सब एक चेन में एक दूसरे से टैक्स कलेक्ट करेंगे एंड देन ओनली द कलेक्शन कैन हैपन फॉर द डिपार्टमेंट एंड द पेमेंट ऑफ जीएसटी भी इनको ही करना है। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है, राइट। सो नाउ दिस कलेक्शन पेमेंट इज टैक्सेबल पर्सन। नाउ जब हम टैक्सेबल पर्सन की बात करते हैं, देयर आर स्मॉल बिजनेसेस एंड बिग बिजनेसेस इन इंडिया, राइट। इंडिया इज अ ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप इज इन द ब्लड। सो कुछ छोटे बिजनेसमैन है, कुछ बड़े बिजनेसमैन है। नाउ इफ आई से टू एवरीबडी कि आपको जीएसटी कलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, सो एज एन इंडिविजुअल जहां मैं छोटा बिजनेस रन करता हूं, इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क फॉर मी, बिकॉज मेरे पास उतना बैंडविड्थ ही नहीं है अकाउंट्स मेंटेन करने का, कलेक्शन करने का, पेमेंट करने का। So they have segregated these taxable person into two kind of people. One is the small business people and one is the big business people. Correct है? तो पहले हम समझते हैं कि small business people के लिए क्या है, right? So these small business people के अंदर क्या बोल दिया है इन लोगों ने कि this is not a taxable person, right? जैसे मैं small businessman की बात करता हूँ, उन्होंने एक लिमिट क्रिएट कर दिया कि अगर आपका टर्नओवर इतने अमाउंट के ऊपर नहीं जाता है, राइट, देन यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, राइट। और जैसे आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो आप ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं करते हो, एंड द मोमेंट यू डोंट फुलफिल दिस कंडीशन दैट मीन्स नॉट अ टैक्सेबल पर्सन एंड हेंस जीएसटी नॉट कलेक्टेड एंड पेड, करेक्ट है। सो बिकॉज यू नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, आप ना ही जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो और ना ही जीएसटी पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है। नाउ द होल बर्डन ऑफ दिस कलेक्शन पेमेंट ऑफ जीएसटी इज ऑन whom? बिग बिजनेस हाउसेज, राइट है। तो जैसे ही मैं यहां का लिमिट को क्रॉस कर देता हूं, आई मूव फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू बिग बिजनेस, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इन द बिग बिजनेस इज वेरी सिंपल कि ये जो बिग बिजनेस है इसके अंदर एग्जेम्पशंस फॉर बेसिक नेसेसिटी, राइट है। सो नाउ अब ये जो बिग बिजनेसमैन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द डिपार्टमेंट, करेक्ट। नाउ द मोमेंट दिस हैपेंस कि जो डिपार्टमेंट को कलेक्शन जाएगा, द मोमेंट दिस हैपेंस उसके बाद ही, वन सेकेंड लेट मी पुट ऑन द पेन, राइट। सो द मोमेंट ये बिग बिजनेसमैन जो है इसके अंदर अभी क्या हो गया, ये दिस पीपल विल हैव टू कलेक्ट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करेक्ट। नाउ अगर
हर एक गुड्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया गया, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू सर्वाइव, करेक्ट। सो देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस फॉर बेसिक नेसेसिटी। उसके अलावा कुछ भी चीज का ट्रांजैक्शन होगा, then this big business houses will have to collect the taxes, correct? So basically only on goods and services which are not exempt, so वही गुड्स पे टैक्सेबल पर्सन जीएसटी कलेक्ट या पेमेंट करेगा विच आर नॉट एग्जेम्प्ट। बिकॉज अगर रोजमर्रा की जो जिंदगी की चीजें हैं, लाइक सपोज अगर मिल्क के ऊपर जीएसटी लगा दिया या फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, ब्रेड के ऊपर जीएसटी लगा दिया, सो इस केस में क्या होगा कि इन सच सिनेरियो जो रोज रूटीन में सब लोगों को काम आने वाली है, then it becomes a very daunting task on the consumer also कि यार मेरे को हर चीज में जीएसटी पे करना है। So there are certain items which have been kept away from GST जो हम सब समझेंगे exemptions के अंदर, करेक्ट है। So basically जो चीजें exempt हो गई हैं, जो goods and services exempt है, उसके ऊपर टैक्सेबल पर्सन जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। बट जो चीज एग्जेम्प्ट नहीं है उसके ऊपर दिस बिग बिजनेस हाउसेज which is crossing the limits of small business houses will have to collect the payment GST and make the payment to the department, करेक्ट है। यहाँ तक इज दिस थिंग कॉन्सेप्चुअली क्लियर कि पूरा फ्लो ऑफ हमारा सीरीज कैसे जाने वाला है, जो पूरा फ्लो हम जीएसटी समझने का कैसे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, एंड द मोमेंट वी अंडरस्टूड कि ये गुड्स है, सर्विसेज है, देन वी हैव टू जंप टू द नेक्स्ट थिंग कि ये गुड्स एंड सर्विसेज खाली रखने से क्या होगा, देन वी हैव टू सी कि उसके ऊपर एक्टिविटी क्या हो रहा है। दैट मीन्स we came to the concept of supply, and the moment we say कि supply है, now supply can happen from one state to another or in the same state itself। अगर ये one state से another होगा then it is called as interstate supply, and the moment we state as an interstate supply there is an IGST levy, right? अब how do we know कि ये interstate है या intrastate है? Therefore that we have to understand the concepts of place of supply, correct है। the moment we understand this place of supply हमको ये समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट हमको ये समझ में आएगा कि जो जीएसटी लगाना है मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा, करेक्ट है। नाउ यहां तक हम समझ गए कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई हो रही है उसके ऊपर या तो सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा, राइट। नाउ ये लग गया है, बट हु इज गोइंग टू डू द कलेक्शन, बिकॉज गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, राइट है। सो गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड यू, राइट, एज अ कलेक्शन एजेंट फॉर देम। सो आप उनके लिए एज अ टैक्सेबल पर्सन you have to collect the taxes for them and make the payment of taxes to them, correct? But this taxes is only for the small business, not for the small business houses but for the big business houses, and जिस transactions पे, जिस supply पे basic exemption facility दिया गया है उसको छोड़ के जो भी transaction होगी, जो भी supply होगा, उसके ऊपर big businesses which is crossing the limit will have to collect the taxes and make the payment to the government, क्लियर है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट है। अब ये तो हो गई मेरी बात है कि मेरे को कलेक्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट कम्स इज कि मेरे को कितना जीएसटी कलेक्ट करना। आई नो द रेट ऑफ जीएसटी, करेक्ट है। वो रेट ऑफ टैक्स एक टेबल के अंदर दिया गया है कि ये रेट ऑफ टैक्स है, बट ये रेट ऑफ टैक्स कौन से अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना है, फॉर दैट वी विल हैव टू सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स, करेक्ट है। हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, राइट, सपोज आई एम मेकिंग दिस प्रोडक्ट, नाउ इसका सर्टेन रॉ मटेरियल हैव बीन गिवन टू बी बाय माय परचेजर इटसेल्फ, बाकी का पूरा काम मैं कर रहा हूं, राइट है। तो इन द सच सिनेरियोज, या फिर समझो कि इसका कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है सप्लायर को, वेंडर को, जो बायर है वो खुद बेयर कर रहा है, तो अंडर वेरियस सिचुएशन कि ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, या तो जो बिल का वैल्यू है, उस टैक्स इनवॉइस का वैल्यू, उस पर ही मेरे को जीएसटी अप्लाई करना है, या फिर द सर्टेन मोर एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस which will give me actual value of supply and I have to apply the rate of tax on those value of supply, clear है। जैसे मैं rate of tax लगाऊंगा, that means this taxer person is now ready to collect the tax and make the payment to the government, clear है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। नाउ अब ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जब मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई समझना है, हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड टैक्स इनवॉइसेस। अब ये जो मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई समझूंगा, तो मैं जैसे डिपार्टमेंट, जैसे मैं सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, करेक्ट, मैं होलसेलर को बोलता हूं कि बॉस यू नीड टू मेक दिस पेमेंट ऑफ जीएसटी टू मी, तो वो होलसेलर क्या बोलेगा, सर
आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट, बट मुझे क्या प्रूफ है कि मैंने आपको पेमेंट दिया है? सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस, राइट? सो फॉर कलेक्टिंग दिस GST, द सप्लायर विल हैव टू इश्यू अ टैक्स इनवॉइस। और हो सकता है कि आज मैंने टैक्स इनवॉइस रेज किया है, कल वो ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ चेंजेस हैं, गुड्स रिटर्न है, गुड्स एक्स्ट्रा गुड्स गए हैं, या रेट में डिफरेंस है, डिस्काउंट है। सो फॉर दैट कॉन्सेप्ट वी हैव डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ऑल्सो, विच इज इन ट्यून विद द टैक्स इनवॉइस ओनली, करेक्ट है? सो बेसिकली जब अल्टीमेटली किसी को टैक्स का पेमेंट करना है टू द टैक्सेबल पर्सन, ही विल आस्क फॉर द टैक्स इनवॉइस, करेक्ट है? तो मैंने एज अ सेलर मैंने टैक्स इनवॉइस भी इश्यू कर दिया, फिर मैंने जीएसटी कलेक्ट किया और मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया, करेक्ट है? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? नाउ ये होने के बाद क्या होगा, अब मैं रोज 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 15 टैक्स इनवॉइस, 20 टैक्स इनवॉइस, 25 टैक्स इनवॉइस, 100 टैक्स इनवॉइस, 200 टैक्स इनवॉइस, 15-10 डेबिट नोट, 15-20 क्रेडिट नोट, ये सब जनरेट कर रहा हूं। अब इसका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है, करेक्ट है? इट इज नॉट दैट आई जस्ट रैंडमली कीप ऑन डूइंग इट, करेक्ट? सो बिकॉज गवर्नमेंट मेरा पार्टनर है, तो ही कैन कम एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड आस्क मी कि बॉस शो मी द रिकॉर्ड्स, आपने इतना पेमेंट किया तो आपने मिस्टेक तो नहीं किया है? सो फॉर दैट पर्पस आई हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज प्रोवाइडेड इन द लॉ। क्लियर है यहां तक? अब ये मैंने अकाउंट्स मेंटेन कर दिया, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर दिया, टैक्स इनवॉइस हो गया। अब जैसे मैंने टैक्स इनवॉइस दिया, ये गुड्स क्या होगा, ये गुड्स सप्लाई होने वाले हैं। सप्लाई कहाँ होंगे? आइदर विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। सो जैसे ये गुड्स सप्लाई होंगे, इस टाइम पे द कॉन्सेप्ट ऑफ ई-वे विल कम, विच सेज कि द मोमेंट द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब मेरे को ई-वे बिल को भी साथ में अटैच करना है टैक्स इनवॉइस के साथ में, विच शोज कि ये गुड्स कहां से जा रहा है, ओरिजिनेट कहां हो रहा है और रीच कहां हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, करेक्ट है? और कौन इसका ओरिजिनेटर है और कौन इसका रिसीवर है, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन द ई-वे बिल, राइट? सो ये हो गया मेरा फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां पे मैंने गुड्स को सेल कर दिया और डिलीवर कर दिया। क्लियर है यहां तक? और साथ ही में मैंने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन शुरू करना, I have started recording all the accounts and records. Clear? Now what we have to see is कि ये मेरा एक फेज ऑफ ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, करेक्ट है? मैंने बिल रेज कर दिया, मैंने माल सप्लाई कर दिया, माल डिलीवर कर दिया। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड फेज ऑफ आवर ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, करेक्ट? तो ये मेरा फर्स्ट फेज खत्म हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड फेज ऑफ ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, विच स्पीक्स अबाउट व्हाट? नाउ अब ये मुझे पता है, जस्ट गिव मी मोमेंट, या अब ये मेरे को पता है कि ये जो मैंने चीजें सप्लाई कर दी आपको, अब मुझे गवर्नमेंट को तो टैक्स का पेमेंट करना है, करेक्ट है? तो मुझे जो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है, मैंने आपको, सपोज आई एम अ सेलर एंड यू आर अ बायर, सो आई हैव सप्लाइड दिस गुड्स टू यू, आई हैव रेज्ड द टैक्स इनवॉइस। उस टैक्स इनवॉइस के अंदर मैंने लिख दिया कि जीएसटी अमाउंट इतना है, राइट राइट राइट, एंड यू हैव मेड दिस पेमेंट टू मी अलोंग विद जीएसटी, राइट? सो नाउ आई हैव कलेक्टेड द जीएसटी, नाउ आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द डिपार्टमेंट, राइट है? अब ऐसा तो नहीं है मैं कि रोज का उसको टैक्स दे पाऊंगा, करेक्ट? सो देयर इज सर्टेन टाइम, देयर इज सर्टेन मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड कि मेरे को गवर्नमेंट को पेमेंट कब करना है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड बेस्ड ऑन दिस टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन विल द लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेज फ्रॉम द कलेक्टर को डिपार्टमेंट को कब पेमेंट करना है, ये हमको कॉन्सेप्ट फिर समझना पड़ेगा, राइट है? सो बेसिकली टैक्स इनवॉइस हुआ, टैक्स इनवॉइसेस के बेसिस पे हमको ये समझने को मिलेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और ऑन बेस्ड ऑफ दैट टाइम ऑफ सप्लाई वी विल अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंट को मुझे जो भी जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट को मुझे कब पे करना है। क्लियर है? इज दिस थिंग सॉर्टेड आउट टिल हियर? नाउ सपोज आई एम सपोज अ ट्रेडर, मैं यहां से गुड्स परचेज भी करता हूं और यहां पे गुड्स सेल भी करता हूं, राइट? मैंने बहुत सारे वेंडर से गुड्स परचेज किया, बहुत सारे वेंडर्स को गुड्स सेल किया है, राइट? तो यहाँ पे सपोज कि मैंने 100 रुपए में खरीदा है, तो मैंने समझो कि 200 में बेचा, करेक्ट? आई विल कीप माई मार्जिन। सो मुझे जब मैं 100 रुपए में कुछ चीजें खरीद रहा हूं, सो आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट है? बिकॉज ये सेल करेगा तो इसने भी जीएसटी में टैक्स इन्वेस्ट दिया होगा, तो जीएसटी लगाया होगा। और जब मैं सेल कर रहा हूं तो मैं 200 के ऊपर जीएसटी लगा रहा हूं, से 10% इज 20 रुपीज, और यहाँ पे 100 रुपीज पे 10% से 10 रुपीज, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट
I have collected rupees 20, but I've already made the payment of rupees 10 to the department based on this tax invoice. So net what I have to make the payment of tax is only 10 rupees. So here comes the concept of input tax credit. That suppose we know that Ola credit and Uber credit, जैसे मेरे वॉलेट के अंदर पैसा होता है, so first I will use that wallet money and then I will make the payment of taxes. Suppose मैं ओला के अंदर जो वॉलेट है उसके अंदर मेरा बैलेंस है सिर्फ 500 रुपए, राइट? And if suppose for my ride the transactions comes to 660 rupees, so पहले मैं क्या बोलूंगा, बॉस ये 500 रुपया पूरा यूज कर लो एंड द बैलेंस 160 रुपीज विच इज देयर, दैट पर्टिकुलर यू विल पे एक्स्ट्रा फ्रॉम कैश, करेक्ट? सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो पहले मैंने क्या किया, इसको यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. और जो बैलेंस 110 रुपीज जो मुझे पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करेक्ट है? सो अल्टीमेटली ये आपका कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस का. डोंट वरी, विल बी गोइंग इन डिटेल विद द होल लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवैल्यूएशन एंड सिचुएशंस. अभी मैं आपको खाली पूरा प्रोसेस फ्लो समझा रहा हूं कि हमको जीएसटी के अंदर कैसे पूरा जीएसटी को सिस्टमैटिकली लॉजिकली समझना है. क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट गाइज? इज दिस थिंग हियर? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ अब जैसे मैंने गवर्नमेंट के लिए पेमेंट का टैक्सेस का पेमेंट कर दिया, सो व्हाट हैपेंस इज दैट आई विल हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स आल्सो. और मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि बॉस मैंने आपको जो पेमेंट किया है ये इसमें इतना अकाउंट, इतना मेरा परचेज है, इतना सेल्स है, इतना मैंने आईटीसी लिया है, इतना मैंने पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया है. तो जो कलेक्टिव रिपोर्ट जाता है उसको बोलते हैं रिटर्न्स, करेक्ट? सो द गवर्नमेंट इज अवेयर कि ये बंदे ने इतना ट्रांजैक्शन किया है, इतना परचेज किया है, इतना सेल्स किया है, इतना उसने टैक्स का पेमेंट किया है, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज किया है. Everything clubbed together till now what we have studied is showcased in a report card which is called as returns, and these returns have to be filed by the seller and then the government will come to know कि इतना इतना transaction हुआ है and the government can evaluate कि जो payment of taxes किया है सही किया है नहीं किया, right? Now who will do this return filing का काम? For that, the government has appointed GST practitioners who will help you to do all these formalities of the government. Clear है? Now, अब certain transactions में ये तो हो गया मेरा यहाँ तक का एक फेज क्लियर नाउ, राइट है? तो यहाँ तक मैंने सेकंड फेज भी क्लियर कर दिया. पहले मैंने पूरा ट्रांजैक्शन किया, सेकंड में वी स्पोक अबाउट ऑल द पेमेंट ऑफ टैक्सेस कि गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कैसे करना है, करेक्ट है? एंड उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी. नाउ इफ सपोज व्हाइल डूइंग अ ट्रांजैक्शन मुझे पता ही नहीं है कि ये जो मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा हूँ ये कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, सो आय और उस पर कितना जीएसटी लगेगा. सो डिपार्टमेंट ने एक एडवांस में बताने का कॉन्सेप्ट ओपन किया, दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग, करेक्ट? सो यहाँ पे क्या होता है, सपोज इफ आई डोंट नो दिस गुड्स कौन से कैटेगरी के अंदर जाएगा, क्या होगा, एंड आई डू नॉट वांट टू एंटर इनटू डिस्प्यूट, सो इन एडवांस आई गो टू द गवर्नमेंट एंड से बॉस ये मेरा गुड्स है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, प्लीज टेल मी कि इसमें कितना जीएसटी मुझे अप्लाई होगा, right? So the moment that you go and submit an application, then it is the responsibility या फिर headache of department आप बोल दो कि department will have to now give you what a solution कि boss इस पे इतना GST लगेगा, so there is no chance of dispute, correct? So here is the concept of advance में आप ruling ले लोगे department से कि boss इसमें कितना GST लगेगा and accordingly you do all the transactions, correct है? Now आपने ये जो returns file किया है, right? So you have maintained your record, you have maintained your purchases, you have maintained your sales, you have maintained कि कितना अपना ITC यूज किया है, you have maintained कि आपने कितना टैक्स पेमेंट यूज किया है, and based on that you have filed the returns. Now suppose the government has certain apprehension कि नहीं आपने कुछ गड़बड़ किया है, right? So then they can call for an assessment, right? आपने जो भरा है ठीक है, please explain us, please show cause as to why you have added this, why you have subtracted this, आपने ये ITC क्यों यूज किया या आपने ITC क्यों नहीं यूज किया, और आपने इतना शॉर्ट पेमेंट क्यों किया, आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं पे किया, आपने पेनल्टी क्यों नहीं पे किया. देन हियर ऑल थिंग्स कम्स इन द असेसमेंट, राइट है? तो बेसिकली डिपार्टमेंट विल असेस कि जो भी आपने यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड भेजा है करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है? सो डिपार्टमेंट विल असेस कि बस आपने जो डिटेल्स बताई है वो सही है या नहीं है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट. जहां भी गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे साथ कुछ चीटिंग हुई है या तो मुझे और पैसे मिलने चाहिए थे. इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस, राइट? सो नाउ
दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, राइट? नाउ वी हैव कि ये असेसमेंट करते करते डिपार्टमेंट बोलता है यार कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, राइट? सो देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट व्हिच कम्स इनटू द प्ले, करेक्ट? सो ये ऑडिट और स्पेशल ऑडिट यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है। जस्ट होल्ड ऑन, माय पेन गॉट हैंग, राइट? तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू गाइस? नाउ द मोमेंट आई से कि ये असेसमेंट के अंदर कुछ गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, सो ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट का प्लानिंग चालू हो जाता है। द गवर्नमेंट विल अपॉइंट सर्टेन CMAs who will do the audit on behalf of the department, right? So as in जिनका ऑडिट हो रहा है उनके लिए नहीं है, बट डिपार्टमेंट अपने एंड से कुछ ऑडिट कराती है, करेक्ट है? तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल ऑडिट। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट, जहां गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं मुझे और डिटेल फर्दर स्क्रूटिनी करनी है, देन दे गो फॉर ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, करेक्ट? नाउ ड्यूरिंग दिस ऑडिट स्पेशल ऑडिट उनको लगता है यार मुझे कुछ चीजें छुपाई जा रही है या कुछ चीजें हो रही है, सो दे कैन गो इन इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट, करेक्ट है? सो रैंडमली मैंने किसी को यहाँ पे किसी ने छोड़ दिया कि यार आप देखो इसका ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड ही विल डू द इंस्पेक्शन, राइट? फिर वो सर्च एंड सीजर करेंगे, और सर्च एंड सीजर करेंगे कुछ अगर ऐसी चीजें मिल गई कि उनको अरेस्ट करना पड़े तो देन दे कैन इवन अरेस्ट देम, करेक्ट? सो ये होता है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। विल बी गोइंग इन डिटेल अबाउट दिस इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, सो डोंट वरी। बेसिकली ये डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है टू कीप एन आई ऑन यू कि बॉस आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो नहीं करो। सपोज व्हाट लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट आपके शॉप में किसी को उन लोग भेज देंगे who are not in the uniform, they will just come as a basic buyer and they will ask you few questions, juggle up कि मेरे को ये कैश में दे दो या मेरे को GST कम पे करना है, एंड इफ यू सपोर्ट दिस पर्सन एंड दे कम टू नो कि आप तो ये आपका बेसिक प्रैक्टिस या आपका ऐसा है काम करने का, सो दे हैव इंस्पेक्टेड अकॉर्डिंगली, दे विल डू द सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट एंड सर्च एंड सीजर, और उसमें अंदर कुछ चीजें मिली तो दे कैन इवन अरेस्ट, करेक्ट है? सो ये हम जाएंगे इन डिटेल, ये बेसिकली आपको मैंने समझाया है। नाउ ड्यूरिंग दिस असेसमेंट हो या स्पेशल ऑडिट हो या इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर हो, एक होगा फिर आपको अगर जैसे डिपार्टमेंट को मालूम पड़ेगा कुछ गड़बड़ है, डिपार्टमेंट विल रेज एंड डिमांड कि बॉस हमारे हिसाब से आपको इतना टैक्स का पेमेंट और करना है, डोंट चीट अस, सो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस डिमांड विद इन 3 months। और अगर आपको डिमांड का पेमेंट नहीं करना है, यू थिंक नहीं यू आर राइट एंड डिपार्टमेंट इज रॉन्ग, सो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन मेक एन अपील एंड फाइल फॉर रिविजन की बॉस जो भी डिपार्टमेंट ने अभी मेरे पे चार्जेस इंपोज किए कि आपने गलत किया है, चीटिंग किया है, उसको रिवाइज करना है, करेक्ट है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपील एंड रिविजन एंड देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी। अगर आप नहीं दे पा रहे हो टैक्सेस जो डिमांड किए गए हैं, सो देयर इज अ डिफरेंट मेथड हाउ द डिपार्टमेंट कैन रिकवर दोस टैक्सेस फ्रॉम यू। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ अगर मैं डिमांड की बात करता हूं, दैट मीन्स मैंने कोई ना कोई लॉ को रॉन्ग इंटरप्रेट किया होगा, या मैंने कुछ लॉ के लूप होल्स को मैंने कुछ गलत तरीके से यूज किया होगा, या फिर मैंने जानबूझ के कोई ऑफेंस क्रिएट किया होगा, पेनल्टी किया होगा, टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। सो फॉर दैट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो आपको हमेशा डिमांड के साथ ही आपको आएगा। क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट, करेक्ट? नाउ दिस वन मोर एस्पेक्ट ऑफ रिफंड। अगर समझो कि बाय मिस्टेक मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया, इफ आई हैव डन एक्सेस पेमेंट, राइट? सो मुझे उसका रिफंड कैसे मिलेगा? एंड देयर आर वेरियस सिनेरियोज वेयर यू कैन गेट द रिफंड ऑफ GST व्हिच यू हैव पेड। सो ये हम समझेंगे रिफंड के चैप्टर के अंदर। क्लियर है? There's one also concept of anti-profiteering which will be going in detail and understanding once we'll be finishing everything in GST. इसके अंदर यही है, जैसे ही हम previous law से GST के अंदर आए, there are certain benefits which were supposed to be passed to the consumer. So वो हुआ है या नहीं हुआ है, for that they have a full mechanism, और उसके हिसाब से if this profit has not been passed to the consumer, that means consumer के ऊपर टैक्स का बर्डन अगर कम नहीं हुआ है, then the person will be, जो सेल कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, पेनल्टीज हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग। सो ये पूरा का पूरा फ्लो है जब हम बात करते हैं एक GST के अंदर कि GST का पूरा फ्लो क्या बैठने वाला है, राइट है? सो फर्स्ट व्हाट वी सॉ इज दैट कि ये जो GST है, पहले हमने समझा कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, वो गुड्स का क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। नाउ दिस सप्लाई कैन बी इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। अब ये कैसे डिफाइन होगा, इंटरस्टेट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, और जैसे हम समझेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई है और इंटरस्टेट है तो IGST लेवी होगा,
प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन है तो CGST SGST लेवी होगा, करेक्ट है। अब ये लेवी हो गया, बर्डन गवर्नमेंट ने डाल दिया, बट ये कलेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? सो फॉर दैट कैन बी डन ओनली बाय टैक्सेबल पर्सन. Small persons within a certain limit are not called as taxable person, hence they are not liable to collect the GST and make the payment of GST. But the people who cross the limit are called as big businesses. For them, they become a taxable person and they are the person responsible for collection and payment of taxes, right? Then we saw कि अब मेरे को ये मालूम पड़ेगा कि मुझे टैक्स का कलेक्शन करना है, बट कौन से अमाउंट पे करना है, कौन से वैल्यू पे करना है. फॉर दैट वी विल हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स. नाउ दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई की जब मैं डिमांड करूंगा कि बॉस आप इतना GST मुझे पे कर दो, तो क्या आप मुझे ऐसे ही दे दोगे? यू विल आस्क मी फॉर टैक्स इनवॉइस, राइट? सो विद टैक्स इनवॉइस वी हैव डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. अभी रोज के जो टैक्स इनवॉइस बन रहे हैं उसका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दिस इनवॉइस आई हैव टू सेंड इट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. अगर गुड्स मुझे डिलीवर करने हैं इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, तो मुझे क्या होगा, एक टैक्स इनवॉइस के साथ ई-वे बिल भी मुझे जनरेट करके ट्रांसपोर्ट में लोड करना पड़ेगा. तो ये हो गया एक पूरा ट्रांजैक्शन रिलेटेड लाइफ साइकिल जो मेरा खत्म हुआ. देन वी सॉ सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, जहां पे हमने देखा कि एज अ बिग टैक्स पेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द डिपार्टमेंट, राइट है. सो अब मुझे डिपार्टमेंट को रोज रोज तो मैं टैक्स का पेमेंट नहीं करूंगा, वो मेरा टीडीएस टास्क हो जाएगा. सो व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई? कब मैं बोलूंगा कि ये सप्लाई हुआ है, राइट है. हमको पता है कि ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, GST का सप्लाई होना चाहिए, एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, और ये उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है हमको ये समझना पड़ेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट टाइम ऑफ सप्लाई वी विल से कि लायबिलिटी टू पे टैक्सेस अराइजेस, राइट. अब जैसे मैं बोलूंगा कि लायबिलिटी टू पे टैक्सेस अराइज, राइट है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. समझो कि मैं ओला में ट्रैवल कर रहा हूं, तो आई हैव टू ऑप्शन. एक तो मेरे जो वॉलेट का बैलेंस है मैं वो यूज करूंगा, और अगर वो शॉर्टफॉल है तो मैं उसका कैश का पेमेंट करूंगा. Same thing, you have input tax credit and payment of taxes which we have to understand after we understand कि liability to pay tax कितना है, right? अब ये मेरा रोज का काम हो गया. Now इसके हिसाब से जो मैंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, गवर्नमेंट विल से कि मेरे को क्यूमुलेटिवली आप मेरे को डिटेल बना के भेज दो, बिकॉज गवर्नमेंट समरी मांगेगा. गवर्नमेंट का इतना टाइम नहीं कि एक ट्रांजेक्शन आपके आके चेक करे, करेक्ट है. सो एक समरी बना के आप दे दोगे, और ये समरी बनाने आपको कौन हेल्प करेगा? GST प्रैक्टिशनर्स विल हेल्प यू, एंड यू विल हैव टू फाइल द रिटर्न्स ऑन द डेट स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू योर आप किस तरह के बिजनेसमैन हो, आपका बिग बिजनेसमैन में आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, करेक्ट है. यू हैव टू फाइल अ समराइज्ड रिटर्न सो दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड इनटू इट, करेक्ट है. नाउ आप ट्रांजैक्शन करते करते यू डोंट नो कि ये गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस पर GST कितना लगेगा. सो यू कैन अप्लाई इन एडवांस टू द डिपार्टमेंट स्टेटिंग कि बॉस प्लीज टेल मी इन एडवांस, आई डू नॉट वांट एनी डिस्प्यूट फर्दर कि ये जो गुड्स हैं उस पर कितना GST एप्लीकेबल होगा. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग, करेक्ट है. देन आपने जो ये रिटर्न्स फाइल किए हैं, इफ डिपार्टमेंट हैव सम इंसेप्शन कि यार मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ मुझे छुपाई गई है या मुझे टैक्स का पेमेंट कम किया गया है, देन द डिपार्टमेंट विल कॉल फॉर असेसमेंट, जहां पे आपसे सारे डिटेल्स मंगाएंगे, वो चेक करेंगे, सारा चीज करेंगे. ड्यूरिंग द असेसमेंट इफ दे कम टू नो कि कुछ तो गड़बड़ है दया, देन दे विल से कि ऑडिट करो, स्पेशल ऑडिट करो इसका. एंड ड्यूरिंग दिस ऑडिट स्पेशल ऑडिट करेंगे एंड दे विल फाइंड सर्टन सब कुछ फाइंडिंग्स होगा, और उसके बेसिस पर डिमांड्स रेज करेंगे, करेक्ट है. या फिर ये लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे, सर्च करेंगे, और कुछ ऐसा मिला तो दे कैन इवन अरेस्ट यू, राइट. सो फिर हम डिमांड की बात करेंगे. जब डिमांड आएगा, डिमांड क्यों आता है? बिकॉज हमने कुछ लॉ के प्रोविजंस को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया, एंड वी हैव ऑफेंडेड द लॉ. फॉर दैट वी हैव ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज व्हिच विल बी एडेड ऑन टू द डिमांड नोटिस. क्लियर है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ये पूरा समझ में आ रहा है. और ये जो डिमांड नोटिस है इसका या तो पेमेंट कर दो या फिर इसके अगेंस्ट आप अपील में चले जाओ, करेक्ट है, करेक्ट. और सपोज बाय मिस्टेक आपने कहीं पे रिफंड, आपने कहीं पे टैक्स का पेमेंट ज्यादा कर दिया, देन देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ रिफंड व्हिच इज एप्लीकेबल, व्हिच विल बी स्टार्टिंग इन डिटेल, करेक्ट. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग. व्हाट इज द एंटी प्रॉफिटरिंग? GST आने के पहले क्या था? देयर वाज प्रीवियस अदर्स लॉज लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज. सो उसके अंदर क्या हो रहा था कि एंड कंज्यूमर के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा था. तो टू सिंप्लीफाई दैट द गवर्नमेंट हैव टोल्ड कि जब हम GST इंप्लीमेंट करेंगे देयर विल बी सर्टेन बेनिफिट्स व्हिच विल गो टू द कंज्यूमर, बट क्या सेलर उसको पास कर रहा है या नहीं कर रहा है? फॉर दैट देयर हैव अ होल मैकेनिज्म टू सी कि अल्टीमेटली द एंड कंज्यूमर बिकम्स द बेनिफिशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर GST इंप्लीमेंटेशन. क्लियर है? सो गवर्नमेंट ने एक पूरी बॉडी सेटअप की है एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए, क्लियर है. सो दिस इज एवरीथिंग व्हाट विल बी कवरिंग इन डिटेल ड्यूरिंग दिस आवर जर्नी ऑफ स्टडिंग GST.
आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड कि हमारा पूरा प्रोसेस फ्लो कैसे जाने वाला है, नहीं जाने वाला है. इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हम सारे जो चैप्टर्स पढ़ने वाले उसका लिंकेज क्या है. सो नाउ व्हेन वी बी डूइंग दिस चैप्टर्स आई विल लिंक एवरीथिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि इसका लिंकेज क्या है, क्यों हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं. करेक्ट है. यू मस्ट हैव गॉट द होल अंडरस्टैंडिंग कि हम ये कैसे करना है. करेक्ट. सो दिस was just an introductory session. Now from the next session we'll be starting in detail and we'll be solving the question answers also. Clear? So till that time, take care, study well, tata, bye bye, have a great day ahead.